you were doing Battle of Hunain, right? So what was the background of Battle of Hunain? That was related to the plan of the Taif tribes to attack on Banu Hawazin and Banu Saqif to attack on Medina. और उस plan की information Prophet को मिली. Prophet sallallahu alaihi wasallam prepared the army and Muslim army left from मक्का से गए थे. Keep in mind, don't write Medina. Muslim army जो थी just one second. So Muslim army जो थी, they moved from Makkah all the way to Hunain. And I told you yesterday, one of the Muslim person made a remark that no one can defeat us today. Did Allah like that statement? Yes, No. yes. So Allah gave them a trial, okay? And the trial was the Muslim army got stuck in a narrow passage of places, Hunain. Great. And how did Allah protect? How did Allah protect the Muslim? You have to remind me of the paper leke jana, because it's with me as well. Okay. So Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's army was stuck in Hunain. And Allah saved them from there. और फिर वहां से वो safely क्या हो गए, निकल गए. So this is where we have stopped in the last class. We will move from there. Even I talked about Battle of Hunain's victory. Allah blessed the Muslims with victory in the Battle of Hunain. और वहां पे जीते कैसे थे वो भी explain हो चुका है. We are going to talk about the next level now. Next level for that one. Close करने Okay. आज हमारा डिस्कशन होगा हुनैन लीडिंग टू सीज ऑफ ताइफ. और मैंने आपको कल ये कहा था कि सीज ऑफ ताइफ जो है इट इज आस्क्ड अलोन एज अ 10 मार्क क्वेश्चन. हुनैन इज नेवर आस्क्ड अलोन एज अ 10 मार्क क्वेश्चन. हुनैन जब भी आया पेपर में या बैटल ऑफ मौता या बैटल ऑफ खैबर या तबूक कंबाइंड क्वेश्चन की फॉर्म में. हुनैन इज नेवर आस्क्ड अलोन एज अ 10 मार्क क्वेश्चन बट सीज ऑफ ताइफ इज आस्क्ड. दैट इज नॉट कैम्ब्रिज क्वेश्चन. आई मेड इट अप बाय माय ओन क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड है. सीज ऑफ ताइफ अगर अकेले भी आता है, यू नीड टू कंबाइन इट विद बैटल ऑफ हुनैन इन द आंसर देयर. एंड इफ बाय चांस बैटल ऑफ हुनैन इज आस्क्ड अलोन एज अ 10 मार्क क्वेश्चन, आपने इसको किसके साथ कंबाइन करना है? सीज ऑफ ताइफ के साथ. हाउ यू विल कनेक्ट देम? हुनैन वी डिस्कस्ड इट. मुस्लिम आर्मी वाज विक्टोरियस. दे मूव्ड ऑनवर्ड. एनिमीज रैन अवे फ्रॉम हुनैन टू वेयर? ताइफ. ताइफ सिटी में चले गए. ताइफ सिटी वाज मैं बताऊं, ताइफ सिटी वाज फोर्टिफाइड क्योंकि वो माउंटेन से कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है. So the people of Taif closed the entrance of the city of Taif. Yes. हाँ मैं आप उसकी तरह मैं थोड़ा सा इसलिए क्योंकि मैं सीक्वेंस में जा रहा हूँ तो वो पॉइंट पर मिस आउट हो जाता है इसलिए. ओके. So Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions sieged the city of Taif. और Taif city को siege कर लिया. अब जो leaders थे inside the city, they were fully equipped. Malik bin Auf की तरफ में आता हूँ. He was the commander actually and other leaders over there. They planned not to leave the city और वो एक साल तक बाहर नहीं निकलना. उनको जरूरत ही नहीं because they have stocked the food with them. अब Muslim army was outside. I'm talking about this part. One second. We are talking about this part. That is the first paragraph is talking about Muslims' victory in the Battle of Hunain. The enemies ran towards where? They moved towards the Taif city. वो Taif city भाग के चले गए and they took shelter there. 1 month तक there was a siege there. Okay, एक महीने तक almost siege रहा. Maybe more than that or close to this one, 20 days or more than that, 40 days. But it's fine to go with month there, 1 month or close to 1 month there. अब some companions, Hazrat Abu Bakr especially, suggested Holy Prophet to leave. नहीं मैं चल रहा थोड़ा सा, ठीक है? तो फिर जो points रह जाएंगे then we will come to that one. Okay. I appreciate that thing. लेकिन होता ये है कि कई दफा हम ना फिर कोई point as a teacher mind में होता है वो रह जाता है और फिर बाद में मुझे जब क्लास एंड होती आई रियलाइज वो मैंने वाला पॉइंट तो बताया ही नहीं है. तो लेट मी गो ऑन विद दैट सीक्वेंस. अगर आपको कोई पॉइंट लगता है कि दैट नीड टू बी एडेड या कुछ क्लिक हो रहा है, द टाइम आई एम डन विद दैट, फिर मैं उसकी तरफ आता हूं. हुनैन के एंड पे जो लीडर्स थे दे टुक शेल्टर इन द ताइफ एंड ताइफ सिटी वाज सीज and Muslims sieged the city of Taif for almost a month. You can say 40 days, you can say 1 month, it's fine. Hazrat Abu Bakr suggested Holy Prophet to lift the siege. Why he suggested Holy Prophet to lift the siege? क्योंकि 12 के करीब मुस्लिम कमांडर्स की क्या हो गई, डेथ हो गई. Every time Muslims go closer to the city, वहां से arrows आते थे and they lost their many key जो commanders हैं, leaders, उनकी डेथ हुई. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam took the idea of Hazrat Abu Bakr. ये आप Hazrat Abu Bakr के टॉपिक में भी लिखेंगे. His life, early life में Hazrat Abu Bakr's suggestion in Battle of Hunain या siege of Taif में. अब Prophet sallallahu alaihi wasallam जब वापस आने लगे, some people said अब क्या करें?
इन लोगों को कर्ज करें, ठीक है। Did Prophet sallallahu alaihi wasallam curse these people or curse the place? Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed for them. What's the prayer Prophet did for them? Oh Allah, guide the people of Saqif and bring them to us. अभी Prophet ने ये दुआ मांगी और वहां से निकलने लगे तो एक डेलीगेशन आया Prophet के पास। कौन सी ट्राइब का था? बनु हवाजिन का। What did they demand? कि आप हमारे कैप्टिव्स हमें दे दें, we will make a peace agreement with you. The situation got changed. अभी लड़ाई की बात चल रही थी और suddenly they were ready to compromise. So Banu Hawazin came to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet agreed on that. अब बनु हवाजिन के साथ compromise हो गया। थोड़ी देर बाद एक और ग्रुप आया and that group was Banu Saqif. Why they came? They came to accept Islam. ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका point develop हो जाएगा and this is the way how whole of Taif came under Muslim flag. ये Prophet ने कब दुआ की थी? और 9th age में कभी तो दुआ की है ना। इससे पहले एक दुआ की थी प्रॉफिट ने इन लोगों के विजिट टू ताइफ वाले में। आपको याद होगा विजिट टू ताइफ में प्रॉफिट सेड दे आर डिसरिस्पेक्टिंग मी बिकॉज़ दे डू नॉट नो मी एंड आई नो कि देयर विल बी पीपल इन देयर जनरेशन हु विल फॉलो द राइट पाथ। तो ये उसके साथ लिंक होता है एंड अल्लाह ब्लेस्ड द पीपल ऑफ ताइफ टू गेट द इस्लाम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपको एक एडिशनल पॉइंट भी इससे रिलेटेड बताया था। मोहम्मद बिन कासिम में जितने भी लोग हैं जो बाद में स्प्रेड हुए वो इसी ट्राइब से बिलोंग कर रहे थे, असकीफ ट्राइब से। असकफी वहीं से टाइटल निकलता है। तो इस्लाम नॉट ओनली वाज देयर इन ताइफ बट आल्सो बिकेम अ सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम। यहां तक ये सारा कौन सा डिस्कशन है? दैट इज सीज ऑफ ताइफ। सीज ऑफ ताइफ में मेरे आंसर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे सिर्फ 2 पैराग्राफ्स हैं, राइट? बट इमेजिन सीज ऑफ ताइफ इज आस्क्ड एज अ 10 मार्क क्वेश्चन, उसमें डिटेल नहीं है। अब क्या चीज लिखनी है? देयर इज समथिंग एडिशनल। लास्ट 3 पैराग्राफ्स जो है ना, 4 1 2 3 4, ये 4 पैराग्राफ्स सीज ऑफ ताइफ से रिलेट तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे हैं। व्हाट वाज द अमाउंट व्हिच वी गॉट? द स्पॉइल ऑफ वॉर की डिटेल क्या थी मुसलमानों को जो हुनैन में मिली है? $24,000 camels, 6,000 slaves। इशू आ गया इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस जाने लगे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने लोग थे? आर्मी कितनी थी मुसलमानों की? 12,000। अब 12,000 में वैसे तो डिवाइड समझ आता है, 2,000 कैमल्स दे दें और आप बोर्ड को तो आधा पोर्शन में नहीं कर सकते, बट इट कुड बी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो सकती है मतलब से। अब चैलेंज क्या आया? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब डिसीजन लिया, लुक हियर एट दिस पार्ट, यहाँ पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्ट्रीब्यूशन में फेवर दिया न्यूली कन्वर्ट्स टू इस्लाम को। न्यूली कन्वर्ट्स कब ज्वाइन हुए? तो 2000 जो न्यूली कन्वर्ट्स थे वो सारे वो थे कुछ ऐसे जो पहले इस्लाम के क्या थे? एनिमी थे, कुरैश के ट्राइब से थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ के मदीना गए। प्रॉफिट को किसने प्रोटेक्शन दिया? पीपल ऑफ मदीना ने। अब ये जो कुरैश के लीडर इस्लाम ले आए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव सम एक्स्ट्रा फेवर टू देम। अपेरेंटली हमें लग रहा है ना फेवर, जिस तरह हमें लगा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक्स्ट्रा कैमल्स दिए हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखें, ये वाली, he gave a herd of 100 camels to least trustworthy newly converted people. Why do you think Prophet sallallahu alaihi wasallam have given that? To gain their trust? और क्या रीजन हो सकता है? प्रॉफिट ने क्यों उनको दिया होगा? एक तो उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए, दूसरा ताकि वो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट रहे, छोड़ के ना जाए उसको, ठीक है। थर्ड, टू इनकरेज देम कि आप एक अच्छी जगह पे, आप अगर इस्लाम को फॉलो करेंगे आपको इस तरह और भी रिवॉर्ड मिल सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किसने किया? नहीं, ग्रुप है पूरा। अंसार ने इस पे ऑब्जेक्शन किया। अंसार ने इसके ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन किया कि प्रॉफिट ने एक्स्ट्रा फेवर दी, एक्स्ट्रा क्या मिलते ग्रेट लुक हियर। सीड ऑफ डिसेंशन तो उलट हो गया। दे आर द वंस हु प्रोटेक्टेड इस्लाम। आपने जो सीड ऑफ डिसेंशन का पॉइंट दिया, दैट विल गो इन हजरत अबू बकर कैलिफेट। ग्रेट। अच्छा, अब ये देखें अंसार का ऑब्जेक्शन किया था, ये जरा गौर से देखें हाइलाइटेड पार्ट। व्हाट डिड दे से? दे सेड प्रॉफिट हैड बीन partial to his own kinsmen। जिन लोगों ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला था और मदीना भेजा था और हमने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट किया, आज वो इस्लाम ले आए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस उनके साथ मिल गए। तो what did they say? Our swords are red with blood and the Quraysh are overloaded with the spoils of the war। फेवर किसको मिल रही है? ज्यादा किसके पास जा रहा है? जो दुश्मन थे और आज आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी विजडम वाला रिस्पॉन्स देखें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते थे माय डिसीजन, भाई आप कौन होते हो, मैं लीडर हूं, मेरी मर्जी है, जो मैं डिसीजन लूं। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट से इन दैट वे।
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो अंसार को रिमाइंड करवाया. इफ यू रिमेंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट महाजरीन और अंसार के बीच में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटी साइन की थी ना, ब्रदरहुड बिटवीन महाजरीन एंड अंसार. लेकिन अंसार के दो ग्रुप्स थे जिनमें लड़ाई होती थी. वो कौन से दो ग्रुप्स थे? नहीं, अंसार के अपने ग्रुप्स जो हैं दो, औस एंड खजरज. व्हाट्स द नेम ऑफ द बैटल बिटवीन देम? आई एक्सप्लेन्ड इट जब मैं आपको प्लेजेस ऑफ अक़बा पढ़ा रहा था. आई वाज टेलिंग यू कि अंसार या जो औस एंड खजरज है वो प्रॉफिट से इंस्पायर क्यों हुए थे? बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर समवन हु विल एंड देयर वॉर. एंड व्हाट्स द नेम ऑफ द वॉर? बैटल ऑफ बोआस. आई रोट इट देयर. बैटल ऑफ बोआस वो बैटल है जो ये 100 ऑफ ईयर से चल रही थी, मतलब कॉन्स्टेंटली जंग चलती थी. और वो किसके बीच में थी? औस और खजरज के. यहाँ पे प्रॉफिट ने उनको रिमाइंड करवाया. Prophet ﷺ said, "Don't think you have favored Islam. Actually, Islam favored on you. And what was the favor on you? That Islam stopped your war." ये वाला ऊपर वाला पॉइंट जो है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट ने दिया हुआ है ना. On hearing their complaints, the Prophet ﷺ told Ansars, were they not misguided without Islam? They were used to fight among each other. Islam favored on you. You are not the one who favored on Islam. लेकिन साथ में जैसे होता बच्चे को पहले डांट दिया फिर उसके बाद थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, if all the people go in one way and Ansar will go another way, Muhammad sallallahu alaihi wasallam will follow the track of the Ansar. So what do you want? You want the spoils of war or you want Muhammad sallallahu alaihi wasallam? तो Ansars got emotional क्योंकि थोड़ी सी स्पीच मोटिवेशनल हो जाए तो फॉरेन लोग भी इमोशनल हो जाते हैं. तो Ansars का रिएक्शन ये था, they started crying. Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed for them. अभी जितना मैंने आपको डिटेल दिया है ये पार्ट ऑफ सीज ऑफ ताइफ है, पार्ट ऑफ बैटल ऑफ हुनैन है. तो आप इसको आंसर में लिख सकते हैं एंड इट विल मेक योर आंसर लेंथ मोर. ठीक है. अब बैटल ऑफ हुनैन हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में. दैट इज द बैटल ऑफ हुनैन. बैकग्राउंड यहाँ तक बैटल ऑफ हुनैन है. देन फर्दर वी हैव सीज ऑफ ताइफ. दो बड़े पैराग्राफ सीज ऑफ ताइफ में है. देन रिमेनिंग 3-4 पैराग्राफ्स ऑन द डिवीजन ऑफ द जो आपकी स्पॉइल्स ऑफ वॉर है उसके ऊपर बेस कर रहा है. हुनैन पे आए तो भी आप ये लिख सकते हैं, सीज ऑफ ताइफ पे आए तो आप लिख सकते हैं. यस ये एक्चुअली अगेन मैं आपको कहूंगा, मैं खुद पर्सनली सोचता हूँ मेरे हैंडआउट में भी डिटेल कम है ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट कैम्ब्रिज ने इसको अभी तक 4-5 मार्क्स में दिया हुआ, मींस के पार्ट ऑफ अ 10 मार्क क्वेश्चन दिया हुआ है. तो अगेन अगर डिटेल आती यू गॉट द टेक्निक. अगर हुनैन पे आता है आप सीज के साथ लिंक करें थोड़ा सा, पूरा सीज डिटेल में नहीं जाएगा. सिमिलरली अगर सीज ऑफ ताइफ केम इन एग्जाम एज अ 10 मार्क क्वेश्चन तो आप बिगिन हुनैन से ही करेंगे. एक चीज साथ में आपको बता दूं क्योंकि कल मैं एक स्टूडेंट को एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा था एंड दैट स्टूडेंट आस्क्ड अ क्वेश्चन कि हमारे टीचर ने क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव एन अकाउंट ऑफ द मेजर इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस इन 8th ईयर ऑफ हिजरा. अब ऐसा क्वेश्चन कैम्ब्रिज ने नहीं दिया हुआ बट कैम्ब्रिज कैन गिव इट. तो स्कूल ने इसलिए दिया है क्योंकि अब आपको पता है कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस ट्रिकी बनते जा रहे हैं. ये नहीं कि एक नोट से रटा लगा यही क्वेश्चन आएगा. दे आर मेकिंग चेंजेस इन द क्वेश्चन देयर. So that student asked me, sir, what were the events which took place in 8th year of Hijra? बात ज्यूज की सारा सिस्टम खत्म. That's 7th year. 8th year of हिजरा में हमारे पास बैटल ऑफ मौता है, उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है और उसके बाद बैटल ऑफ हुनैन है. ये तीनों इवेंट्स किसमें हैं? 8th year of हिजरा में. इसकी टाइमलाइन कोशिश करें आपने बनानी भी है. मैं आपको भी ज़बानी भी रिकॉल करवा सकता हूँ बट आई विल सजेस्ट यू कि आप एक दफा उसके सामने एक लिस्ट बनाएं. सीज ऑफ ताइफ इज काउंटेड इन 9th year of हिजरा क्योंकि जब बैटल ऑफ हुनैन स्टार्ट हुई थी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का किस मंथ में हुआ है? I think I mentioned the month here as well when we talking about it. अब मुझे डाउट ऐसा होता है कि ये रमजान के करीब का कोई मंथ था बट इवन आई एम नॉट वेरी मच श्योर. कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद हुनैन हुआ है. हुनैन के बाद जब सीज ऑफ ताइफ हुआ ऑलमोस्ट न्यू इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट हो चुका था. 9th year of हिजरा स्टार्टेड. तो सीज ऑफ ताइफ इज काउंटेड इन 9th year of हिजरा. 9th year of हिजरा शुरू हो गया. 9th year of हिजरा में सीज ऑफ ताइफ है. उसके बाद एक बड़ा इवेंट है बस. वो क्या है? फिर मदनी लाइफ का ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो जाता है. तो प्रॉफिट की लाइफ का लास्ट ईयर रहता है. एक्सीलेंट. तबूक एक्सपीडिशन वहां पे हमारे पास आएगा. दैट्स द टोटल जो 9th year है. 9th year of हिजरा में एक और इवेंट है, प्रॉफिट खुद इन्वॉल्व नहीं है, वो है पहला हज का ग्रुप हज पे गया था और कौन लीड कर रहा था उसको? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु. होली प्रॉफिट ने खुद जो हज किया है वो किया है 10th year of हिजरा में. वो हम आगे जाकर भी डिस्कस करते हैं. तो मूविंग टू तबूक एक्सपीडिशन और हमारा अगला डिस्कशन है तबूक एक्सपीडिशन. मैं आपको एक दफा क्विकली
मदनी लाइफ के जो क्वेश्चंस है रिकैप भी करवा देता हूँ, देखिए आपको आइडिया हो जाए हमने इसमें क्या क्या किया। मैं ज़बानी बताता हूँ, यहाँ छोड़ने से और कंफ्यूजन होती है। स्टार्टिंग विद, मैं ईयर वाइज बोलूंगा, फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा, सेकंड ईयर ऑफ हिजरा, बिफोर वी मूव टू द तबूक टॉपिक की तरफ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा में क्या क्या इवेंट्स थे, क्विकली थोड़ा सा। यस, फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा में वार्म वेलकम, मस्जिद नबवी की कंस्ट्रक्शन, अजान, ब्रदरहुड बिटवीन महाजरीन एंड अंसार, चार्टर ऑफ मदीना में दोनों आ गए, ब्रदरहुड बिटवीन महाजरीन एंड अंसार एंड ट्रीटी विद द ज्यूज ऑफ मक्का, पीस ट्रीटी विद द ज्यूज। ये आपका फर्स्ट ईयर डन। सेकंड ईयर ऑफ हिजरा में ज़कात एंड फास्टिंग वर मेड ऑब्लिगेटरी, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था बट यू कैन राइट इट। फास्टिंग एंड ज़कात वर मेड ऑब्लिगेटरी, बैटल ऑफ बदर, और एक और चीज भी हुई थी, क़िबला डायरेक्शन वाज चेंज फ्रॉम मस्जिद अल अक्सा टू मस्जिद अल हराम, ये भी लिख सकते हैं। इसी साल एग्जाइल ऑफ बनु कैनुका भी है। ये कौन से साल की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर आफ्टर हिजरा की। थर्ड ईयर आफ्टर हिजरा में बैटल ऑफ कौन सी है, बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ ओहद के साथ है एग्जाइल ऑफ बनु नजीर, ये मेन इवेंट्स हैं। फोर्थ ईयर ऑफ हिजरा में कोई मेन इवेंट नहीं है। फिफ्थ ईयर ऑफ हिजरा में एक ही इवेंट है, बैटल ऑफ अहज़ाब, और साथ में उसी के एंड में एग्जाइल ऑफ बनु कुरैज़ा। एम आई राइट, इज इट एग्जाइल, पनिशमेंट ऑफ बनु कुरैज़ा। मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था कि बनु कुरैज़ा को पनिश किया गया था, दे वर नॉट एग्जाइल्ड, तो पनिशमेंट ऑफ बनु कुरैज़ा। सिक्स्थ ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में क्या हुआ है, सिक्स्थ ईयर में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, बस यही है। ठीक है, सेवेंथ ईयर में खैबर है, लेटर टू किंग्स है, एंड प्रॉफिट मुस्लिम्स परफॉर्म उमरा। सिक्स में नहीं किया था तो किस साल किया, सेवेंथ ईयर में। एट्थ ईयर की अभी मैंने आपको बताया, मौता, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का एंड हुनैन। नाइन्थ में सीज ऑफ ताइफ एंड तबूक एक्सपीडिशन। दिस इज टोटल व्हाट यू नीड टू हैव। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द बैकग्राउंड ऑफ तबूक एक्सपीडिशन। चले पहले शुरू में आपको क्विकली बताएं, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। यस यस यस, हाँ जो वो मार किया था ना उधर, तो उसी वजह से जो हेराक्लिस था है ना, he prepared an army against the Muslims. Okay. सर, और जो मुस्लिम सर वो fear कर रहे थे कि एक strong force के against रहेंगे। तो hypocrites थे, उन्होंने डिस्कस किया था, मैंने कहा आप नहीं जीतेंगे। और फिर जो मुस्लिम ने एक रेवोल्यूशन किया कि ओ मुस्लिम वाला क्या ही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह आया तो हम क्या ही है। उन्होंने डोनेशंस मांगे थे उनसे, फिर जो हजरत उमर थे, हजरत उस्मान थे, उन्होंने 960 कैमल्स दिए थे, एक 940 कैमल्स दिए थे, 6 horses दिए थे, and 10,000 dinars जो हजरत अबू बकर थे उनमें अपनी सारी वेल्थ देती थी, जो हजरत उमर उनमें अपनी आधी को देती थी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा गिव द पॉइंट, इसमें कुछ चीजें हमें ऐड अप करनी है, तो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग, और उसमें वो पॉइंट भी ऐड अप होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंटली डेवलप हुई हैं, बट डजंट मैटर। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड कि तबूक एक्सपीडिशन हुआ क्यों था। तो मेन रीजन था बिहाइंड तबूक एक्सपीडिशन के, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें, ये बुक की ही वर्डिंग मैंने चूज की, मैं थोड़ा सिंपली अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद जो चीजें डेवलप हो सकती हैं हम इसके अंदर डेवलप भी करते हैं। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न्यूज मिली थी कि सीरियन बॉर्डर के ऊपर जो रोमन्स हैं, दे हैव प्रिपेयर्ड एन आर्मी एंड दे आर गोइंग टू अटैक ऑन द मुस्लिम। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये न्यूज मिली, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज टू मेक डिसीजन कि वहां जाके लड़ना है सीरियन बॉर्डर पे या मदीना में वेट करना है। दिस इज फर्स्ट डिसीजन प्रॉफिट हैज टू मेक, क्योंकि तबूक सीरियन बॉर्डर की तरफ है और मदीना से दूर है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते मदीना में रुक भी सकते थे और वेट करते, एनिमी आते तो फिर फाइट करते, बट प्रॉफिट प्रेफर्ड कि वहां जाके लड़ाई की जाए, बजाय इसके कि एनिमी आए और अटैक करें। प्रॉफिट वांटेड टू गो देयर, बट व्हाट वर द चैलेंजेस कि प्रॉफिट वाज हैविंग डिफिकल्टी इन मेकिंग दैट डिसीजन। 4 इश्यूज थे जिसकी वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ पे आपको ये 4 रीजन नजर आ रहे हैं। पहली चीज ये कि देयर वाज अ ड्रॉट एंड फेमिन इन हिजाज, पूरे ओवर हिजाज के अंदर। समर वाज एक्सेप्शनली हॉट। ये बैटल हो रही है सितंबर के महीने में, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूमिड मंथ होता है मिडिल ईस्ट का, बहुत ज्यादा हब्स होता है और इट्स डिफिकल्ट टू ट्रैवल। आप थोड़ा सा भी वॉक करते हैं, आप इतना स्वेट करते हैं कि आप ड्रेन फील करते हैं, आप बैठ जाते हैं, तो दैट इज डिफिकल्ट। सेकंड थिंग इज इट वाज टाइम फॉर पिकिंग ऑफ द डेट्स। आप अगर नहीं करेंगे तो डेट्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। बेडुइन्स वर रिलक्टेड, मुसलमानों की अपनी कुछ, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था शुरू में कि सर मुसलमानों की आर्मी बढ़ कैसे रही थी। नॉर्मली ऐसा होता था, बेडुइन ट्राइब्स अलायंस करते थे, टेम्परेरी अलायंस भी होता था, परमानेंट अलायंस भी होता था,
और वॉर में अगर मुसलमानों के साइड से लोग लड़ रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम के खाली मुस्लिम्स ही मुसलमानों की साइड से लड़ रहे हैं. देयर आर मेनी टाइम्स जिसमें मुसलमानों के क्रिश्चियंस और ज्यूज के साथ भी अलायंस थे, एंड दे वर फाइटिंग फ्रॉम मुस्लिम साइड एट दैट टाइम. तो जो बेडुइन ट्राइब्स थे, दे हैड बैड एक्सपीरियंस इन बैटल ऑफ मौता. You remember Battle of Mauta discussion जिसमें मुसलमानों के 3 कमांडर्स की डेथ हुई and Muslims were not able to defeat the Romans. अभी भी लड़ाई किससे होने वाली है? रोमन से. तो प्रॉफिट न्यू के लोग इतना स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करेंगे because they had bad experience in the previous battle there. ठीक है? Considering एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं. फिर उसके बाद मुनाफिकीन का भी रोल आप मेंशन करेंगे कि मुनाफिकीन जो थे वो प्रॉफिट से ये कह रहे थे आपने अभी जंग में नहीं ट्रैवल करने में they were reluctant. And they said, "Do not make journey in the day and night." Prophet sallallahu alaihi wasallam said, दूर जाना है, रात को भी ट्रेवल करना है और आपने दिन में भी ट्रेवल करना है. दिन में क्यों ट्रेवल नहीं कर रहे थे मुनाफिकीन जो थे? क्या एक्सक्यूज दे रहे थे? सर क्योंकि गर्मी, वेदर वाज हॉट, वेदर वाज हॉट, वेदर का इशू था. या आजकल के वर्ड्स में गए तो सनबर्न का इशू था. ठीक है, तो उसमें सनस्क्रीन्स वगैरह नहीं थे उनके पास, तो दे वर मेकिंग एक्सक्यूजेस कि हम दिन में ट्रेवल नहीं करेंगे. अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब चीजों को एक साइड रखते हुए ही सेड वी हैव टू गो एंड ही डिसाइडेड टू गो. अब नाउ ही नीडेड डोनेशंस. वी विल गो इन डिटेल्स ऑफ द डोनेशंस. यहाँ पे आपको डोनेशंस की डिटेल नहीं मिल रही, इट्स देयर इन माय आंसर बिलो. हजरत अबू बकर गेव full of his what did Prophet ask him? What did you leave in your house? What did Hazrat Abu Bakr say? Just the name of Allah and his messenger. ये Hazrat Abu Bakr का point हो गया. Hazrat Umar brought half of his wealth. It is said that Hazrat Umar was thinking in his mind कि आज तो मैं अबू बकर को पीछे छोड़ दूंगा, and he was feeling happy on that day when he reached there, and he was thinking I am the one who is giving more donation. So when he asked Hazrat Abu Bakr told that he said I cannot beat him in that generosity and good deed. हजरत उस्मान का कंट्रीब्यूशन नीचे मेंशन हुआ है, कैमल्स एंड दिनार्स डिटेल्स आर मेंशन बिलो, वहां पे ऐड करेंगे. प्रॉफिट की सेइंग क्या है हजरत उस्मान को? व्हेन हजरत उस्मान डोनेटेड, प्रॉफिट सेड समथिंग टू हजरत उस्मान. ग्रेट. Whatever, regardless whatever he do, excellent. ये saying बहुत रेयर सोर्सेज में लिखी हुई है कि in simple words nothing will harm Usman from today onwards whatever he do. Yeah, that's the exact good wording there. Regardless of whatever he do after that, that shows Prophet sallallahu alaihi wasallam's likeness to that good deed. हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यहाँ पे रोल आपने मेंशन करना है. सर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीने में छोड़ दिया था. ठीक है, yes. You are to be as Harun Muslims expect there will no problem. Excellent. Good. हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वाइफ जो थी, कौन थी उस वक्त? Hazrat Fatima, the daughter of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, she was sick. So Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted Hazrat Ali to be as his deputy in Medina, and as well. But Hazrat Ali, he was like skilled, he was brave, and he wanted to participate. He wanted to show his bravery skills there. He requested Holy Prophet to take him with Muslims to the battle. But Hazrat Ali said, Holy Prophet said to Hazrat Ali, "You are to me like Harun was to Musa. And but I am the last prophet and there is no prophet after me." ये क्यों कहा था? क्योंकि हजरत मूसा जब भी ट्रेवल पे जाते थे अल्लाह से बात करने, तो अपने पीछे अपना खलीफा हजरत हारून को छोड़ते थे. ग्रेट. अब ये आपके चारों मैंने क्यों डिटेल बताई? 10+ कंपेनियंस पे जब भी आपने नोट लिखना है, चारों पे एक एक पॉइंट आपका चला जाएगा वहां पे. यू गॉट द आइडिया? तो ये आपकी डिटेल्स उधर तबूक वाला पॉइंट चारों पर्सनैलिटीज में ऐड होगा और सबकी अपनी अपनी डिटेल उधर ऐड होगी और ये भी आपके आंसर को डेवलप करेगा. मुस्लिम आर्मी वाज 30,000. 20,000 जो थे बाय फुट थे, थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर दूं रहना जाए. 10,000 हॉर्स राइडर्स थे. और अब्दुल्ला बिन उबय का रिएक्शन था बिकॉज ही वाज इन कांस्टेंट एफर्ट के किसी तरह मुसलमान डिस्करेज हो और ना जाए आगे. बट मुस्लिम्स केप्ट मूविंग and they reached Tabuk. When they reached Tabuk, there was no army. Two possibilities हैं. या तो rumor था कि the Romans were not there, just a rumor was there. या दूसरी possibility थी Romans were not expecting कि मुसलमान अचानक आ जाएंगे. So they may have changed their plans and they may have stepped back. Anyway, no battle. It was just an expedition. Muslims reached there, signed peace agreement with the leaders of the tribes, and finally Prophet sallallahu alaihi wasallam returned back. Prophet sallallahu alaihi wasallam ने वापसी पे एक मस्जिद को demolish किया. Which masjid was that? सर मस्जिद-ए-ज़रार. मस्जिद-ए-ज़रार and दरार both are correct क्योंकि Z और D का pronunciation है but correct. ये वो मस्जिद थी जहाँ पे मुनाफिकीन प्लॉटिंग करते थे.
Great. Allah has discussed about this masjid in Quran. कुरान में भी आप जिक्र ऐड है कर सकते हैं, ठीक है। दो सर। मस्जिदों और का वो कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा था कि इस मस्जिद को जला दें। एग्जैक्टली exactly. तो ये एक वाहिद मस्जिद है। ये कई दफा ना एमसीक्यूज के जब कंपटीशंस होते हैं जनरल नॉलेज के, तो वो कहते हैं कौन सी मस्जिद होली प्रॉफिट ने डिस्ट्रॉय की थी या डैमेज की थी। तो दैट वाज अपेरेंटली अ मस्जिद बाय नेम, बट दैट वाज द प्लेस वेयर प्लॉटिंग वाज गोइंग। दिस इज द मॉडल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट अगेन my model answer has a little bit less details. The above details will help you to expand your answer there. मॉडल आंसर में मैंने की फैक्ट्स और रेफरेंसेस पे ज्यादा रिलायंस रखा है, एडिशनल डिटेल्स आप ऊपर से ऐड करेंगे। हजरत उस्मान का जैसे सेइंग अबाउट हजरत उस्मान यहाँ पे नहीं है, and that's a good thing you added it, and that is something which is going to be added in the answer here. तो वो आपके आंसर को स्ट्रॉन्ग करती है। हजरत अबू बकर के बारे में क्या था, हजरत उस्मान के, examiner is expecting a student may write about this discussion there. बाकी मस्जिद का नाम यहाँ पे मेंशन हुआ है, basic information is there, but that needs to never ask alone as a 10 mark question. ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी तक तबूक पे कोई 10 मार्क का अकेला क्वेश्चन कैम्ब्रिज में नहीं आया। आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 से 2025 तक, बट आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, बिकॉज द कैम्ब्रिज इज मेकिंग 5 मींस द पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन एज अ कंप्लीट क्वेश्चन एंड समटाइम्स 2 10 मार्क क्वेश्चन एज 1 मार्क क्वेश्चन, 1 10 मार्क क्वेश्चन। तो आपने कभी अपनी इंग्लिश स्किल्स यूज करनी है, कहीं समरी इज रिक्वायर्ड, कहीं एक्सटेंशन ऑफ द लिमिटेड इंफॉर्मेशन, तो योर स्किल्स आर आल्सो judge there. अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस की। We talked about siege of Taif and we talked about Tabuk expedition. We are moving to the last main topic of Prophet's life, that is the last year in the life of Holy Prophet. यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक आता है the final year और the farewell year in the life of Holy Prophet, और दूसरा आता है the farewell Hajj, the pilgrimage या the farewell sermon of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। अभी हम जिस तरह इसको डिस्कशन करेंगे, इट विल कवर बोथ टॉपिक्स इन इट। उसमें फेयरवेल हज भी आ जाएगा और उसके अंदर साथ में प्रॉफिट की लाइफ का लास्ट ईयर भी आएगा, क्योंकि इफ द क्वेश्चन इज अबाउट लास्ट ईयर 60 to 70% वो अगेन लास्ट हज के ऊपर ही होता है। अंडरस्टैंड? आई विल टॉक अबाउट द लास्ट ईयर जिसमें हज भी इंक्लूड होगा। पहले मैं उसकी आपको आउटलाइन बताता हूँ। Is there anyone who has done this topic in school, the treaty with the Christians of Najran? Have you done that one? Anyone who has heard about the word Mubahala incident? No. Great. There is no need to worry about it. ये मैंने इसलिए ऐड किया है, इस तरह लेटर टू किंग कभी नहीं आता था, कैमरे ने उठा के दे दिया। There is a possibility कि ये चीज भी कभी पूछी जा सकती है। और ये क्यों? क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था, कैम्ब्रिज का नहीं है, स्कूल ने दिया हुआ था, राइट एन अकाउंट ऑफ 3 treaties attended by Holy Prophet while his stay in Medina। तो उसमें एक तो वो शुरू में ट्रीटी विद ज्यूज या ट्रीटी ऑफ मदीना कह लें, दूसरी हुदैबिया हो गई, तीसरी ये बात बुक्स में इसको थर्ड नहीं काउंट करते, वो करते हैं ट्रीटी विद ज्यूज एट खैबर, उसके साथ लिंक हो जाता है। ट्रीटी विद क्रिश्चियंस ऑफ नजरान की तरफ में बाद में अगर मुझे जरूरी लगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आगे एक और क्वेश्चन है जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। राइट नाउ आई एम स्किपिंग ट्रीटी विद क्रिश्चियंस ऑफ नजरान, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, इट्स नॉट अ बिग डील। सिर्फ एक बुक में एक्सप्लेन है, दैट इज यास्मीन मलिक इस्लामियात बुक, दैट इज मेंशन्ड देयर में, बाकी और बुक्स में नहीं है। और बट आई थिंक जो स्कीम ऑफ वर्क है कहीं ना कहीं इसको रेफर करती है, बाद में मुझे आपने रिमाइंड करवाने में। प्रॉफिट की लाइफ का लास्ट ईयर, we need to talk about 6 things in it. What are the 6 things we have to talk about it? First of all, we have to introduce the last year of Holy Prophet means what? Last year, Prophet died in which year? He died in कौन सा हिजरी कैलेंडर था? 11AH। 11AH के third month में, the third month is Rabiul Awwal. Prophet died in 11th AH, third month of 11th year of Hijrah. If I say last year in the life of Holy Prophet, does it mean 11AH or it means a complete 1 year? A complete 1 year. You have to talk about 10AH to 11AH. Understand? अब उसमें बात बचे सिर्फ ना वो हज के बारे में लिख देते हैं। No. You need to talk about Prophet's last year is famous as year of delegations. Different delegations came to Holy Prophet. Prophet stopped going on campaigns after Tabuk expedition. Tabuk expedition is the last expedition. उसके बाद Prophet campaigns पे नहीं गए. You can begin your answer from there. And then you are going to mention the reference of Christians, treaty with the Christians of Najran. Among the treaties which he signed was treaty with the Christians of Najran. उसके बाद हज जो है कौन सा मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का? ज़िल हज कौन सा मंथ है इस्लामिक कैलेंडर में? Which month is it? ज़िल हज जो है 7, 9,
फर्स्ट मंथ कौन सा इस्लामिक कैलेंडर का? गुड। और लास्ट मंथ? ऑनलाइन वाले भी आज रेस्ट कर रहे हैं सारे। यस, मूसा कहाँ चला गया? यस, व्हिच मंथ इज द ज़िलहज इन इस्लामिक कैलेंडर? लास्ट मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का। ओके, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 10th ईयर ऑफ हिजरा का आखिरी मंथ है। अब आप ज़िलहज से अगर स्टार्ट करें, इट मींस यू आर टॉकिंग फ्रॉम ज़िलहज। उससे पहले के 2 मंथ्स देखें। रमजान के महीने में डिड प्रॉफिट डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ? You have done that. Think about it. How many Prophet used to do something to make sure Quran जो reveal हुआ है उस साल तक का companions के बाद, what he used to do? He used to recite it once in front of companions every month of Ramadan. But in the last year, yes, with Angel Jibreel and in front of companions. In the last year, he did it twice. That is what you're going to mention there. Okay, this is what you're going to add in your answer. कैमरे उसको अप्रिशिएट करता है। उसके बाद आप हज की तरफ जाएंगे, हज की डिस्कशन आएगी। कुछ बच्चे यहाँ एतकाफ भी लिखते हैं कि प्रॉफिट परफॉर्म्ड एतकाफ फॉर मोर देन 10 days that year, giving a hint that is possibly the last year in the life of Holy Prophet. अब हज की डिटेल आएगी, पहले मैं आउटलाइन बता। हज की डिटेल आपने मेंशन करनी है। हज पे काफी सारी डेवलपमेंट होगी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया अरफात में। खुतबे के एंड पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम spoke to the people and he asked, did I deliver my duty and task? So the people said, yes, you did. Prophet sallallahu alaihi wasallam pointed his finger towards the heavens and he said, oh Allah, be the witness. उसके बाद Allah revealed last verse of Quran, वो आप mention करेंगे, this day we have perfected वाला, वो आएगा exactly. उसके बाद Prophet sallallahu alaihi wasallam, did he stay in Makkah permanently or he returned back to Medina? He returned back to after 5 days or 3 days, yes, after Hajj. He stayed there for a few days, then he came to Medina. Prophet sallallahu alaihi wasallam हज करके मदीना जब पहुंचे, ज़िल हज का महीना ही चल रहा था। उसके बाद 3 महीने और Prophet sallallahu alaihi wasallam रहे। We have Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Almost 15 to 20 days before his death, he became sick. तो आपने sickness की detail mention करनी है। Prophet sallallahu alaihi wasallam took permission from rest of the wives and he stayed in the house of Hazrat Aisha radhiyallahu anha. आपने develop करना है। During his sickness, he was not able to lead prayer, so he asked Hazrat Abu Bakr to lead the prayer. और क्या ऐड करना है? यस नहीं, 100% नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता। इवन आपको पता है होली प्रॉफिट के पास हजरत जिब्राइल एक दफा आए और बड़ी लंबी हदीस है। उन्होंने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिफरेंट क्वेश्चंस किए। उसमें पहले उन्होंने पूछा ईमान क्या है, प्रॉफिट आंसर्ड हिम। देन ही सेड इस्लाम क्या है, प्रॉफिट आंसर्ड हिम। देन ही आस्क्ड एहसान क्या है, प्रॉफिट आंसर्ड हिम। देन उसके बाद एंजल जिब्राइल कहने लगे क़यामत कब आएगी। Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the one who is asking and the one from whom it is asked, they both have no knowledge of it. तो similarly death का भी exact time किसी को भी नहीं पता होता है। तो Allah knows better exactly, but Prophet कोई आम इंसान को थोड़ा सा एक hint अंदाजा हो जाता है। और इसीलिए उससे पहले Prophet sallallahu alaihi wasallam, I missed one point, Prophet sallallahu alaihi wasallam met his family और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटरेक्शन है, and he said something in her ear and he wept first. उन्होंने कहा था कि मेरे बाद जन्नत में पहली मुलाकात जो फर्स्ट में हुआ तो she cried, wept when prophet told कि I think I won't, आपका वो जो पॉइंट था कि प्रॉफिट को अवेयर होता है, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम just said that I think that I won't be able to live more. So she started weeping and then prophet said, you will be the first one to meet me in the paradise from the family. So she started smiling और फिर वो 6 months के बाद उनकी डेथ हुई। Prophet died in Rabiul Awwal, Hazrat Fatima died in the month of Ramadan. Almost 6 months का gap उसके अंदर आता है। तो she is the only daughter of Holy Prophet who overlived Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। अब हम इस क्वेश्चन के थोड़ा सा डिटेल, बल्कि सॉरी, प्रॉफिट की डेथ के ऊपर कैमरे जब क्वेश्चन देता है ना लास्ट ईयर, you have to talk about who washed the body of Holy Prophet and enshrouded that body of Holy Prophet. Who did it that one? नहीं नहीं, look here, यहाँ देखें, एक मिनट, यहाँ पे देखें, नजर आएगा लास्ट पैराग्राफ। ये देखें, हजरत अली, हजरत अब्बास एंड फजल इब्न अब्बास वॉश हजरत अबू तलहा अंसारी made the grave. Cambridge is expecting students may write the situation at the time of the death of Holy Prophet. It was an emotional situation. Did the people believe in Prophet's death immediately? There was a
Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar was emotional. What did he say? सर उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने कहा that holy prophet has died, he would be killed. He will behead that person. Because according to Hazrat Umar, it's a disrespect. Prophet cannot die. He is there. And he said that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is here. He will be back. He went to meet Allah like Musa used to go to the Mount of Tur. So then Hazrat Abu Bakr pulled him down. What did he do? He recited the verses of Surah Al-Imran. अगर आपको better of बहुत याद हो. Yes, sir. Better of all the fact कि a prophet can also die. Exactly. The Quran ki verse है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल. Muhammad is just a messenger. And then that's the Surah Al-Imran reference there. Afa immat aw qutila. If he dies or he is killed, will you change your religion? Will you you won't believe in it? You should believe that the Prophet is a human being and he will die one. Hazrat Umar cooled down and he said that when Abu Bakr was reciting the verses, I felt like these verses were revealed for me for that day. And then the things were settled down gradually. आप इस आंसर में ये सब चीजें लिखेंगे. I was telling you a brief outline for that. मॉडल आंसर यहाँ पे है, ठीक है, और दैट इज द पार्ट व्हिच इज रिलेटेड टू द ब्रीफ डिटेल्स अबाउट दैट. आपने कोशिश करनी है प्रॉफिट की स्पीच खुतबा जब आप लिखते हैं तो यू नीड टू पॉइंट आउट द स्पेसिफिक टीचिंग सपोर्टेड बाय अ रेफरेंस. अगर आप लिखते हैं ना कि प्रॉफिट इन हिज स्पीच फोकस्ड ऑन इक्वालिटी, दैट्स नॉट लेवल 3, इवन नॉट लेवल 4 समटाइम. प्रॉफिट फोकस्ड ऑन इक्वालिटी इन हिज स्पीच इज राइट. वी नीड टू सपोर्ट इट बाय अ रेफरेंस देयर. And if you develop it with the reference, automatically it will take you to level 3 and gradually to level 4 if it covers in sequence and structured way. So try to take out the teaching and support it by a reference as well, like this way. Or model answer नीचे यहाँ पे है, ठीक है. I will suggest you and ask you to go with the model answer here. ये Prophet sallallahu alaihi wasallam की लाइफ का लास्ट ईयर का डिस्कशन है. पहले पैराग्राफ में हज की डिटेल है, फिर teachings with references are there. Last verse of Quran were revealed to Holy Prophet, meeting with his daughter and Ahle Bayt. यहाँ पे discussion हुआ है. And then Prophet was focusing on some specific areas वो आपने mention करना है. I added an additional reference here. Prophet बीच में एक दफा severely sick हुए and companions became emotional. Prophet was alive at that time. Prophet sallallahu alaihi wasallam came to know about that and he was concerned. What did he do? He came outside with the support of the people and he spoke to them. What did he say? अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ पे ये वाला पार्ट है. I have come to know that the rumor of your prophet's death has alarmed you. क्योंकि लोगों ने न्यूज़ फैला दी थी कि prophet की death हुई. But has any prophet before me lived forever that might make you think that way? So prophet just gave them a speech, an emotional speech. After that, you will see, so the previous prophets की death हो गई, I will also die. Death awaits us all. सबको कवेट कर रही है, ठीक है? And let no one then seek to escape. इट कोई भाग नहीं सकता. बालों का तो मौत से भागने मौत के करीब ही जा रहे होते हैं. अक्सर ऐसा भी होता है. Sir, my life has been for your good, so will be my death. Means कि मेरी death के बाद भी आपको जाहिर है you have to learn how to live without a prophet as well. So that is something which is going to make you realize for that. So Prophet sallallahu alaihi wasallam gave the speech some days before his death as well. It also made the people. और ये हज़रत उमर का रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था ये भी मैंने ऐड किया है. आप अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज को कर सकते हैं. There are two questions which are asked related to that. एक है last year of Holy Prophet's life और दूसरा क्वेश्चन है farewell sermon या speech of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam और उसके अंदर जो मेन टॉपिक्स है उसको आपने क्या